अस्सलाम वालेकुम। और सलामती भेजना तो पीस की दुआ देना हमारे आज के टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा है, ताल्लुक़ रखता है। तो सलाम से हम शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 14 showing by now, so welcome you all. A little introduction of myself, as my name is showing on the screen. My full name is Anisa Rifat Ali, and people call me Anisa. And Ali is my surname, my husband's name. So I have done my master's in psychology, that showed in my introduction as well. I did my master's. I passed out back in 1993 and did my master's from Government College Lahore. Psychology was my passion, and so I did my master's from Government College Lahore. I passed out in 1993, and then I started teaching in Rahim Yar Khan, because that is my native city. I joined Beacon House School System. The new branch opened up, and that was my good luck. I'm just sharing this. The new branch opened up because the system had to grow the branch, and then they worked on the team that they selected, and I was in the team that was selected for the day one, and we were 7 people there, and got opportunity to learn a lot from Beacon House. They sent us for training to all their regions. Northern region में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ पे ले जाके हमारी ट्रेनिंग हुई. सेंटर में लाहौर में हुई, साउथ में कराची में हुई. तो वो जो एक जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, उसने मुझे मेरे टीचिंग के करियर में, दो आई हैड नो ट्रेनिंग, आई हैड नॉट डन एनी BEd, any MEd or anything, but I got on the job training, and that was the sound base for my profession that I really enjoy till today. For good 16 years I worked with Beacon House, and then I worked starting from a nursery class teacher. Within 3 years I was promoted as a kindergarten coordinator, and then primary school coordinator, then senior mistress, and then senior mistress in charge, running the complete branch independently. And I set up the Sakhar branch, and I was there for 3 years there in Sakhar. Then there was an offer by the city school system. They needed headmistress to run their 2 branches. One was the nursery branch and one was the senior branch. They were starting their O-levels. So considering growth in my own career, I joined the city school there, and I was there for a year, and I started up their O-level section there in that branch as well. And then got opportunity here I was approached by the FFC school system. They needed a person who has some expertise in the early years, and then luckily they found me and I came here. And since last 13 years, I'm working over here as a headmistress or section head for the early years, we may call. And the branch I am heading deals with classes playgroup to class 3. And along with that, I teach social sciences as well. I teach psychology and sociology to A-level students and economics to O-level students. And I love teaching mathematics as well to primary students, and I teach Islamiyat as well. So this is what, as a teacher and a professional, my introduction. And let's begin with anger management. And anger, we all know the word, the connotation generally is not so good. हमें यही लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसका हमें नाम नहीं लेना, या ये हमारे पास आना नहीं है. तो यहाँ तक बात तो ठीक है कि इससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है, हम इसकी एक छोटी सी बात करेंगे इसके बारे में. इसका एक स्टार्टअप लेंगे. जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे लगा कि इस पे 2 सेशन होने चाहिए.
और आज का सेशन जो है वो इज़ मेनली, मैंने इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पे रखा है, और बाद में अगर हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स पे बात करना चाहेंगे तो हम कोई और इस पे सेशन जो है कर सकेंगे। एंगर जो है, हमें सबको पता है कि ये क्या है। एंगर जो है, एंगर जो, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक इसका जो कंपोनेंट है वो हमारा फीलिंग्स का जो कंपोनेंट है, और दूसरा हमारा जो है इसका कंपोनेंट वो है जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। ये जितने भी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, एंगर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसमें से हम इसमें से ये नहीं कह सकते कि ये कोई क्यों एंग्री फील करता है। जिस तरह हम खुश होते हैं, जिस तरह हम उदास होते हैं, जैसे हमें दुख महसूस होता है, ऐसे ही हमें गुस्सा भी महसूस होता है। तो हम इस पे आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये नॉर्मल है या नहीं है टू फील एंगर, लेकिन ये एक ऐसे ही एक इमोशन है, इसको हम स्टैब्लिश करके हम आगे बढ़ेंगे दैट एंगर इज एज likely an emotion as is happiness, as is sadness, as is grief। ठीक है, तो उसी तरह से एंगर एक इमोशन है। तो हर इमोशन की तरह से इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, और उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेस करता है, और इस तरह की जो हमारी सिम्टम्स हैं, जो चेंजेस हैं, जब हम एंगर का इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उससे हमारे अंदर पैदा होती हैं। इसी तरह से हमें जो इतना ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंगर, कि ये हमारी जो थिंकिंग की एबिलिटी है उसको सीज कर देता है। उस वक्त जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, वो उस वक्त में हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा होता। यहाँ से इसके जो डैमेजेस हैं उसकी कहानी का क्लू तो हमें मिल जाता है कि क्यों कहा गया है हमें जो है गुस्सा हमारे रिलीजन में भी हराम है। इसको के लिए जो लफ्ज़ है, जो मुझे हमेशा मैं याद रखती हूँ, अपने आप को ये कहती हूँ कि जिस तरह से हम कहते हैं जी सूद हराम है, नहीं खाना, नहीं इस्तेमाल करना, फला मीट हराम है, नहीं करना, तो एक मैंने अपने लिए हुक ये बनाया हुआ है कि ये हराम है, अल्लाह ताला ने इसको हराम बोला है। तो उसकी हर वो हराम चीज़ का हमें रीज़न पता है कि अल्लाह ने एवं ही शौक से नहीं कर दी हुई कि बस इसको हराम कर दो, इसको हलाल कर दो। वो इंसानों के लिए नुकसानदेह है। जो चीज़ें भी अल्लाह ने हमें मना किया है वो इंसानों के लिए। अल्लाह मीन्स द क्रिएटर, जो इस हमारी इस मशीन का जो कि जिसको हम लिए फिरते हैं, उसका जो खालिक है, उसने कहा इसके मैनुअल में ये लिख दिया कि गुस्सा नहीं करना इसको। जैसे कहते हैं ना कि इतने वोल्टेज का करंट जो है वो इस मशीन में चल सकता है और इतने का नहीं चल सकता। तो इस मशीन में गुस्सा जो है वो इसको खराब करता है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें इसके साइकोलॉजिकल इमोशनल पार्ट है, और इसका फिजियोलॉजिकल जो है चीज़ें हैं, ये एंगर को हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना देते हैं। यानी हमारी ये जो बॉडी है ये नहीं चलनी चाहिए। तो अब यहाँ से वो सिचुएशन हमारी समझ में आती है कि हमने क्योंकि एंगर मैनेजमेंट की तरफ जाना है, तो हमें मैं एस्टेब्लिश करने की ये कोशिश यहाँ पे ये कर रही हूँ कि ये एक इमोशन है, इससे हमें जो है नुकसान हमारा ही नुकसान है, तो वी लर्न टू मैनेज इट। तो जी बहुत चैलेंजिंग है कि हम अपने सिचुएशन को, बिलाल ने लिखा कि बहुत चैलेंजिंग है, इसे हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो मैंने इसको यूं ही अपने टॉपिक्स को मैनेजमेंट साइड पे ही इसको रखा है। मैं इसकी ज़्यादा फिजियोलॉजी और वो उसकी तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम कॉमन एक लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो हम इसको आम सादा जुबान में पढ़ते हुए इंशाल्लाह इसको स्टैब्लिश करेंगे कि कैसे हमें हेल्पफुल हो सकता है कि हम अपने एंगर को मैनेज कर सकें। तो ये चीज़ें साथ हमने लेनी है। इमोशन है, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हमारी
हमारी इतनी इमोशनल वो रेस है कि हमारा जो थिंकिंग कॉग्निटिव ब्रेन एग्जेक्टिव ब्रेन है इट स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो फिर एक रैशनल बात तो उसमें हमें एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत होता है। तो हमने अब ये देखना है कि जो एंगर है, अगर वो इमोशन है, जैसे मैंने कहा कि हैप्पीनेस भी है, सैडनेस भी है, ग्रीफ भी है। ग्रीफ का भी तो एक्सप्रेशन होता है ना। इसको ये हमें ना कुछ सोसाइटल चीजें भी हैं कि हम एकदम से किसी चीज के बारे में सोच के उसका अच्छे इजहार का तरीका नहीं सीखते हैं। हम ग्रीफ को भी लोगों को एक्सप्रेस नहीं करने देते। हम हालांकि ग्रीफ का जो गम की कैफियत शदीद होती है, उसके भी अच्छे नॉर्मल तरीके से अगर उसका इजहार कर दिया जाए तो फिर वो हमें कम अफेक्ट करता है, हमें इतना नुकसान नहीं होता। तो इसी तरह से हमें ये समझना है, इसी तरह से हमें इसी तरह से ये समझना है कि जो ये एक नॉर्मल हमारा जो एंगर है, ये एक नॉर्मली बिल्कुल दूसरे इमोशंस की तरह इमोशन है। इसको एबनॉर्मल जो है उसका एक्सप्रेशन का पैटर्न बनाता है। जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा, वो इसको एबनॉर्मल बनाता है। अब हमने अगर देखें तो किस तरीके से जनरली लोग इमोशन एंगर का इमोशन है, इसको कैसे डील क्या करते हैं, तो जनरली 3 चीज़ों से डील करते हैं। या तो इसको एक्सप्रेस कर देते हैं द वे दे हैव लर्नड इट, जैसे उन्होंने नर्चर किया है अपने इर्द गिर्द, अम्मा को देखा, अब्बा को देखा, दोस्त को देखा, स्कूल में देखा, इर्द गिर्द आंटियों अंकल्स को देखा कि ऐसे ही एंगर, तो जो लर्नड बिहेवियर है वो उस तरीके से वो एक्सप्रेस हो जाता है। अगर किसी ने अच्छे से एक्सप्रेस करना सीख लिया, उसकी गुड लक, जिसने बुरे से करना सीख लिया तो वो उसकी हार्ड लक, वो वैसे ही सफर करता रहेगा। या कुछ लोगों को सप्रेस करना सिखा दिया जाता है कि नहीं नहीं, गुस्से का इजहार नहीं करना, दबाना है गुस्सा आ जाए तो। या ये है कि हम उसको कामिंग डाउन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ लोग सीख लेते हैं गुस्सा आए, जिन्होंने बचपन से ही सीखा होता है पानी पीना है, उठ के चले जाना है। अच्छी चीजें भी तो हम सीखते हैं, लेकिन इसको अगर हम अपने एक पैटर्न से सीखना चाहें तो हमें ये तीनों में से हमें ये देखना है कि एक्सप्रेशन होना चाहिए, और सप्रेस करना इज नॉट यूजफुल एट ऑल। एक्सप्रेस करने में एक चीज आती है कि उसको हम अग्रेशन की तरफ ना ले जाएं जब हम एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये जो अग्रेशन है, इसके क्या नुकसान होते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे। एक्सप्रेशन जो करना है उसमें हमने दोनों एलिमेंट्स का इजहार का ख्याल रखना है कि ना हमने अपनी इमोशनल फीलिंग्स को अपसेट होने देना है, ना हम जिसके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हर्ट करना है एट इमोशनल लेवल, और ना ही फिजिकल लेवल। एंगर में लोग जो होते हैं अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं, तो हाथ माथ पीठ तक चले जाते हैं एंगर की वजह से। आजकल तो हम बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल सुनते रहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि जितनी दफा भी एंगर जो फिजिकली एक्सप्रेस होता है, मोस्टली बहुत ज्यादा परसेंटेज में ये अपने से नीचे लेवल पे ज्यादा फिजिकली एक्सप्रेस होता है। या तो एज में नीचे होगा, या स्टेटस में नीचे होगा, या अपने उसकी तरफ से होगा। और दूसरी तरफ ये है कि ये नहीं मैं कहती कि अदर वे नहीं होता, दोनों तरह से होता है, बट जनरली आमतौर पर हम देख रहे हैं हाउसमेट्स के ऊपर किस तरह की एग्जांपल्स आ रही हैं कि एंगर जो है उसकी वजह से उनको इतना मार दिया कि जान भी चली गई। तो ये वो वाला अग्रेशन भी नहीं होना चाहिए एक्सप्रेस करते वक्त, और सप्रेस भी नहीं होना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम्स हैं ये। तो हमें देखना है, हमें सीखना है कि हम कैसे अपने एंगर का इजहार कर सकते हैं, और एंगर बेसिकली होता क्या है, क्यों, किन किन सिचुएशंस में हम अपने एंगर के इमोशंस को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और कैसे हम उसको काम डाउन कर सकते हैं। अब जब हमने ये सोच लिया कि हमने इसको कैसे काम करना है, तो इसमें हमें ही कुछ ना कुछ करना है। मेरे जहन में अभी वो ना एक आयत है कुरान की, एग्जैक्ट
मीनिंग नहीं आ रहे जहन में। मतलब उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को ये कहा है कि अपनी जब तक इंसान अपनी मदद आप नहीं करता है तो अल्लाह जो है वो मदद के लिए नहीं आता है। जैसे वो एक शेर है कि फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। फिजाए बद्र पैदा करना शर्त है। तो एंगर के लिए हर मुश्किल चीज को करने के लिए हमें कुछ करना होगा अपने लिए। अगर हम ये समझते हैं कि ये मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं कंट्रोल करूंगी या करूंगा, अगर मैं ये कहूंगी कि XYZ मुझे गुस्सा दिला रहा है तो फिर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं करूंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये सोचना है कि गुस्सा मुझे आ रहा है, ये मेरा इमोशन है, मैंने इसको ठीक करना है क्योंकि ये मुझे नुकसान दे रहा है और मेरे से किसी को नुकसान पहुंचेगा तो भी अल्टीमेटली मुझे ही नुकसान है। तो जब हम इस सोच पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम एंगर को मैनेज करने का ज्यादा काम हो जाएगा। ये दोनों फीलिंग्स को हमने कंट्रोल करना है, इमोशनल फीलिंग्स को भी और फिजियोलॉजिकल अराउजल को भी। तो इन दोनों में जो इमोशनल फीलिंग्स और फिजियोलॉजिकल अराउजल में हमने अपना इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि किसको कौन सी चीज कंट्रोल करनी पहले बेहतर लगती है, क्योंकि इसमें से एक दूसरे को हेल्प करता है, इसमें को रिलेशनल है, कॉजल इसमें रिलेशनशिप नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इमोशनल फीलिंग्स फिजियोलॉजिकल को काम करती हैं या फिजियोलॉजिकल अराउजल्स जो है अगर वो रिड्यूस होगा तो इमोशनल है, नहीं। लेकिन ये दोनों अगर एक रिड्यूस हो रही है तो दूसरी के रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। तो ये को रिलेशनल में पॉजिटिव को रिलेशन है। अब हमने करना क्या है कि मैं ये करती हूँ कि मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं डीप ब्रीदिंग करती हूँ और सिंपली कहीं भी गुस्सा आ रहा है नाक से सांस लेके जाती हूँ, मुंह से निकाल देती हूँ 2-3, तो मेरा थोड़ा सा जो है वो रेस डाउन जो होता है, जो एंगर है, और फिर मुझे थोड़ी समझ आती है कि नहीं कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ नहीं होता अगर ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा तो ये आप कोई देख लें कि जो इमोशनल फीलिंग्स का जो चक्कर है वो हमारे थॉट प्रोसेस के साथ लिंक है। उसको हमने जो है वो कंट्रोल करने की बजाय हर वक्त हमने पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको भी साथ में रखना है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जिस पैटर्न पे हम सोचते हैं बाकी भी जिंदगी में, वही एक लेंस लगा होता है हमारा किसी भी सिचुएशन को देखने में। तो असल में तो जो ट्रिगर है हमारा, जिससे हमें एंगर ट्रिगर कर रहा है, वो जो इवेंट हुआ है उस इवेंट के बारे में हमने एक सोच सोची है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास किसी के हाथ से टूटा गिर गया। अब अगर हम ये कहते हैं, हम सोचते हैं ओहो ये गिलास गिर गया, टूट गया, हमें इस पे गुस्सा नहीं आए, ये फीलिंग हमें हमारे कोई और सोच को जन्म नहीं देगी, ये जो हम सोच लेके आए। अगर हम कहेंगे सोचेंगे आला जी एक फिर और ग्लास तोड़ता है, ग्लास ही तोड़ती रहती है, ठीक है, या तोड़ता रहता है। अब ये वाली जो थॉट है, ये थॉट हमें और तरह के फीलिंग्स को और इमोशन को जनरेट करेगी। तो अब हम जो हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं वो किसी ना किसी थॉट से जन्म लेती हैं। जो फीलिंग है वो खुद से नहीं, ऐसे ही नहीं, फीलिंग डायरेक्ट नहीं होती, उसके पीछे एक थॉट होती है। अगर हम अपना ये थॉट का एनालिसिस करते रहें कि कोई भी अकरेंस हुई है जनरल नॉर्मली, उस अकरेंस पे हमारा पहला थॉट क्या आती है, क्या वो थॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाती है या वो थॉट बस एक्सकेलेट करने वाली है। वो जो थॉट है ये एक हमारा पैटर्न होता है। अगर आप अपना सिर्फ एक थॉट चार्ट ही बनाना शुरू कर देना कि कुछ भी हुआ घर में, 3-4 कोई भी चीजें हुई अच्छी या बुरी, तो मेरी थॉट क्या आई पहली उसको देख के, जो भी हुआ एक थॉट चार्ट बनाएं तो आपको एक अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसमें फिर आप देखेंगे कि क्या ये मेरा जो थॉट पैटर्न है वो एकदम से सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है, हेल्प की तरफ लेके जाता है, या ये मेरे ट्रिगर करता है, मेरे वो नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है थॉट पैटर्न।
तो हम अगर अपने थॉट पैटर्न पे जनरली थोड़ा सा उसको मस्बत अंदाज में ले जाना शुरू करें, तो फिर ये हमारी जो इमोशनल फीलिंग्स का कंपोनेंट है, ये भी हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। फिर हमें जो है वो इतनी एस्केलेशन से, छोटी छोटी बातों से नहीं होती, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है, जो कोई भी ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर पे हमने पहले ही ट्रेन किया हो जाता है। जिंदगी तो मजमुआ है, इसमें फूल भी हैं, इसमें कांटे भी हैं। ये तो हो नहीं सकता कि सारी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक होती रहें। तो इसलिए ये हमें जो कुछ नहीं हो रहा है हमारी मर्जी के मुताबिक, तो हम जनरली उस पे कहते हैं कि उस पे हमें एंगर और दूसरे नेगेटिव इमोशंस जो है हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमने इन दोनों के कंपोनेंट्स का जो है वो ख्याल रखना है। अब ये जो मैं बात कर रही थी कि अब जो फीलिंग आ गई, कोई हैपनिंग हुई है, तो उसको हमने कुछ चीज़ों को तो सेपरेट कर देना है। वी जैसे कहते हैं ना, वी नीड टू से नो टू स्मोकिंग, अपने आप को रोकते हैं। तो एक चीज़, कुछ चीज़ों पे हमें अपनी ज़िंदगी में ये नो लगाने पड़ेंगे। उसमें से एक नो ये लगाना है कि मेरा कोई इख्तियार नहीं, जो मेरा ये हाथ अल्लाह ताला ने दिया है, ये हाथ हेल्पफुल हैंड होना चाहिए। इस हाथ ने किसी दूसरे की बॉडी को टच नहीं करना है, टू हिट, टू पुश और टू पनिश। अगर अपने हाथ पे हमने ये ना लगा लिया नॉट पहले, ये अग्रेशन से रोक देगी, क्योंकि अग्रेशन जो है ये उसका इजहार है आपकी जो भी एंगर के नतीजे में चीजें पैदा हुई हैं। अगर एक आपने अपने हाथ से अपने आप को रोक लिया, स्टे अवे किया, तो फिर उसके बाद जो है आप अग्रेशन से बच जाएंगे। अगर हम ये अपना राइट ये समझें कि ये कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो मार के बगैर समझते नहीं है, अगर हमारी थॉट ये है, हमारा बिलीफ ये है, फिर तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को एंगर के नतीजे में पैदा होने वाले अग्रेशन से बचा सकें। तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं, कुछ चीज़ों का सेट ऑफ, हम अपना जिंदगी के जो असूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम डिराइव, और ये सारे कोई भी रिलीजन्स हों, कहीं भी किसी भी रिलीजन में कहते हैं यही बात है कि जहाँ से किसी दूसरे का की बॉडी स्टार्ट होती है, उनका एक अपना सर्कल है स्टार्ट होता है, वहां से दूसरे का इख्तियार जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ, इस तरह से कि आप उसको हिट कर सकें, आप उसको मार सकें, आप ये हम नहीं कर सकते। ये हमने अगर किसी को फॉर एग्जांपल अपने किसी सर्विस किसी की अपने लिए हायर किया है, तो किसी काम के लिए हायर किया हुआ है, या कोई बच्चा है हमारा वो, तो भी उसको आप एक सर्टन उसकी भी गाइडेंस है कि अगर कभी आपने किसी को मुंह पे नहीं मारना, किसी को ये नहीं मारना, बच्चों को तो खैर मारने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, वो एक चाइल्ड जो है हैंडलिंग एक अलग बड़ा टॉपिक है। लेकिन अग्रेशन के लिए हमें अपने आप को रोकना होगा। वी विल हैव से नो टू हिटिंग अदर्स। अगर हम ये एक अपना प्रिंसिपल लाइफ का बना लेंगे, तो फिर हम अग्रेशन से अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं। अब एंगर की जो इमोशनल स्टेट है, इसके लिए ये जो बहुत इसकी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। हम इरिटेटेड फील कर सकते हैं, सिंपली हम अपने आप में अनईजी हो सकते हैं, और इससे अलावा ये जो है रेज तक, फ्यूरी और रेज तक भी हम जैसे कहते हैं ना, गुस्से में मुंह से थूक निकलना, कफ निकलना, वो जो है उस सिचुएशन तक भी हम जा सकते हैं। तो अब हम में से क्या हम कभी बैठकर उस वक्त जबकि हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, जैसे कि अभी हम सब हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि मैं एंगर में क्या क्या करता हूँ, क्योंकि जब हम एंगर में हैं तो हम सोच नहीं सकते। तो अब हम थोड़ा सा इसको हम सोचेंगे कि एक तो ये है कि अग्रेशन से तो हम अपने आप को एक प्रॉमिस कर लें कि हमने ये जो फिजिकल पार्ट है, एक्शन पार्ट है एग्रेशन का, एंगर का, इसमें से तो हम अपने आप को निकाल लें। तो बहुत ही, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गिल्ट होता है, फिर उसके बाद शेम होती है, वो और भी ऐसे इमोशंस हैं जो हमें इमोशनली और साइकोलॉजिकली फिर डिस्टर्ब करते हैं। अग्रेशन इज फॉलोड बाय, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एंगर की फीलिंग में से निकलेंगे स्टेट में से, और उसके बाद अगर हमने एग्रेशन किया है, ऐसा एक्ट किया है उस पर, वो हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम हमेशा तो स्टेट में नहीं रहेंगे ना, उसका तो एक
हाई पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद उसको नीचे आना ही आना है, उबाल ने तो कम होना ही होना है। तो फिर उसमें बाद जो शेम होगी, जो गिल्ट होगा, वो हमें और परेशान करेगा, वो एक विशियस जो साइकिल है, हम उसके अंदर धंस जाएंगे। तो इसलिए हम अपने आप को उससे निकाल सकते हैं एक बहुत बड़े पार्ट से, बाय प्रॉमिसिंग आवरसेल्व्स कि हमने किसी को हिट जो है वो नहीं करना है, और उसका कोई फायदा नहीं होता। अब हम में से ये हम सोचें कि हम में से थोड़े से लोग हैं, हम बात कर सकते हैं कि हम में से कैसे लोग अपने एंगर का जो है वो एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे गुस्सा करते हैं। मैं शाउट करती हूँ, मुझे जब गुस्सा आए तो मैं ऊंचा बोलती हूँ, तो जो कि मुझे बुरा लगता है बाद में कि मैं क्यों ऊंचा बोली। सो इसलिए आप में से मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि कुछ लोग जो भी वांट टू टेक लीड, कि कैसे आप अपने एंगर का इजहार करते हैं, गुस्से का इजहार कैसे करते हैं। में से ऐसा बहुत लकी लोग होंगे जो गुस्से का गलत इजहार नहीं करते होंगे, उनको गुस्सा नहीं होता होगा, लेकिन वो होंगे अगर तो वो हम में से, तो अच्छी बात है। सभी साहब आगे, मेरा ख्याल है सभी साहब से बात करते हैं। जी सभी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम अनीसा एंड एवरीबॉडी। देखिए, ये जो जहाँ तक ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया जा रहा है इस टॉपिक को मैम अनीसा, और बहुत अच्छा बता रही हैं। अब बात ये होती है कि एंगर की जो फॉर्म्स है ना, वो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट होती हैं टू माय माइंड। लाइक कि अगर इफ वी स्टैंड फॉर अदर्स एंड फॉर आवरसेल्व्स, तो वो एंगर की एक किस्म है कि हम किसी दूसरे के लिए या अपने लिए, पर्सन ऐसे होता है हम प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों को, हम उनके लिए कुछ स्टैंड लेते हैं, उनका साथ देते हैं, हम समझते हैं कि जी वी फाइट फॉर व्हाट इज राइट, कि जी ये सही है। आप ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, लोकली भी, कि वो अपने जो लीडर के साथ किसी की भी कोई हमदर्दी XYZ पर्सन, तो उसके लिए भी वो एंगर और ग्रीफ शो करते हैं, बट वो सिंपैथेटिक एटीट्यूड के अंदर वो एंगर होता है। वो समझते हैं कि यार ये बंदा हम इसके साथ हैं। लाइक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि पाकिस्तान जब हुआ है तो आपके सामने किस तरह लोग उनके साथ आए हैं एंड ऑल। तो ये जो है इट इज फॉर्म एंगर, अ फॉर्म ऑफ अ लव, और चूंकि इसकी वेरियस फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। और फिर ये कि आप माशाल्लाह, इट्स नाइस टू लर्न दैट यू आर अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। और इसमें आप देखें कि एक नॉर्मल पर्सन का एंगर और होता है। अभी हमारा लास्ट जो एक हुई थी हमारी प्रेजेंटेशन, वो ऑटिज्म के ऊपर हुई थी। तो ये जो डिसेबल्ड, ऑटिस्टिक या मेंटली कोई एलिमेंट जिनको हैं, इलनेसेस हैं, इनके एंगर में जो है वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो फर्क होता है। वो खैर आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो ये तो जो अब मुझसे कहा गया कि कुछ थोड़ा सा इस पर कमेंट करें। बाकी बात तो मैंने वैसे शुरू मैम अनीसा आपसे ये करनी थी, इट इज रियली नाइस टू हियर दैट यू आर फ्रॉम ज़हीन यार खान, because my family and I, we have had a stay of 9 years at Lever Brothers Pakistan Limited. वो बाद में फिर यूनिलीवर आई, और वहाँ 1983 से 92 तक मैं रहीमिया था मेरा। और मेरा बेटा जो है वो आपने चूंकि बीकन हाउस का बताया, तो ही ऑल्सो रेंडर्ड हिज सर्विसेज इन बीकन हाउस सिस्टम फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये कदर मुश्तरक इत्तेफाक से चीजें होती हैं। जी, तो बाकी तो ये है कि माशाल्लाह आपका इतना जितना एक्सपीरियंस है, और इसमें जो कुछ आप माशाल्लाह बता रही हैं, तो मुझसे जो पूछा था थोड़ी सी वो चीज जो मेरे ज़हन में आई, वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। मैं वैसे जानना चाहूंगी सभी साहब कि आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, मैं आपको सही बताऊं कि मैंने बच्चों की, मेरे 4 बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी, 2 ऑफ देम आर अब्रॉड। एक FSC फौजी फर्टिलाइजर में है, पहले वो बीकन हाउस में था, और मेरी बेटी उसने भी मास्टर्स किया हुआ आप ही की यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी से लाहौर में, पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर, कोई वो अकाउंटेंट्स और वो सब। मैंने बच्चों को जो बच्चों की अपब्रिंगिंग की, आप यकीन करें कि मैंने बच्चों को खुद पढ़ाया भी है। तो आई हैड एज अ फादर, मैंने उनसे डिस्टेंस रखा है, पूरी रिस्पेक्ट वगैरह भी लिया, उनको डांट डपट भी की जो एंगर की बात आ रही। मैं उनसे जब गेम्स खेलता था, लाइक स्कॉश वगैरह उनको सिखाई, स्विमिंग या कुछ, तो मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड होता था। तो वो कहते थे कि यू डोंट लुक लाइक अ वो फादर,
जो कि who was angry with us this morning, और तो वो उनके इस तरह के कमेंट्स होते थे। और ये तो वो, और जब कोई सोशल गैदरिंग्स में होते थे उसका सॉल्व टुगेदर। तो मेरा मकसद है कि मैंने लाइफ में, और फिर जबकि मैं अब एजुकेशनिस्ट भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, और मैंने इंडस्ट्रीज में भी काम किया काफ़ी और इधर उधर, तो वो बंदे को जिंदगी में एक्सपोजर मिलने से काफ़ी बंदा सीख जाता है कि एंगर की जाए, एंगर की जो जहाँ मैं आई हैव बीन अब्रॉड ऑल्सो, जब मुझे पता है कि मैंने अरबियों के साथ जब मुझे एंगर का होता था, तो यकीन करें कि मुझे पता है एक दफ़ा मैं कार में जा रहा था, ड्राइवर बना, वो आहिस्ता गाड़ी ड्राइव कर रहा, तो मुझे गुस्सा सा आ गया। मैंने कहा यार ये तुम आगे क्यों नहीं निकल रहे हो गाड़ी से? कहता सर प्लीज सर इफ यू डोंट माइंड सर, हमारे बॉस की गाड़ी आगे जा रही है। अब वो बहुत स्लो जा रही थी, वो प्रेडो टाइप बड़ी हैवी गाड़ी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे डिस्टेंस रख के बेचारा चल रहा है, और मैं अंदर से आए वो, मतलब आप देखें कि एज अ पाकिस्तानी मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि यार ये किस जगह पे मैं आ गया हूँ। तो ये है कि मैंने, हाँ, तो ये You expressed your anger that time. You expressed your anger that time. That's right. You are very right in saying that. तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो भी है एंगर, जो मैं समझ पाया हूँ, बाकी माशाल्लाह आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, तो आपसे सुनते हैं और जानते हैं अब मुझे। चले, थैंक यू। ये असल में जो एंगर का एक्सप्रेशन है, इसके साथ हमारे कुछ अल्फाज भी जुड़े होते हैं। अगर हमने, जैसे मैंने पहले अग्रेशन कहा, उसमें हाथ का इस्तेमाल है, पाँव का इस्तेमाल है, फिजिकल पार्ट है। अब अगर हम टोन को हाई कर लेते हैं और हमारा अल्फाज की सिलेक्शन पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो जो हर्ट कॉज करते हैं वो भी फिर हम दूसरे के दिल में भी रहता है, और जिसने इस्तेमाल किया होता है उन लफ्ज़ों को, उनके लिए भी वो अच्छा नहीं होता। तो दूसरी चीज़ जो है, हमने एक्सप्रेशन में जिस बात का ख्याल रखना है अपने आप को, कि हम अपने नॉर्मल जब हमारी डिस्कशंस भी हो रही हों या कभी, तो हम अल्फाज के चुनाव में अगर हम कॉन्शियस हैं, सभी सब आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं जी नहीं, मैं आप बहुत अच्छी बात सुन रहा हूँ आपका। प्लीज माइक अगर काइंडली आप म्यूट कर लें। अच्छा सॉरी, नो प्रॉब्लम जी। तो उसमें ये है कि फिर अल्फाज का जो हमने इस बात को अपने ध्यान में रखना है, जैसे मैंने हाथ के इस्तेमाल का कहा, कि हम अल्फाज का चुनाव जो है उसके लिए हम एक कॉन्शियस ये एफर्ट किया करें कि दूसरों को हमारी डिस्कशंस में भी, कि उनको हम किसी के लिए को हर्ट ना करें। तो अगर हम नॉर्मल, जब हमारा एक गुस्से की कैफियत में नहीं है, जब हमारा थिंकिंग ब्रेन काम कर रहा है, तब अगर हम सिलेक्शन अच्छे से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर लाइकली कि एंगर में भी हम फिर थोड़ा एहतियात बरत जाएंगे। अदरवाइज अगर हमने आम रूटीन में भी बहुत अपने आप को खुला छोड़ा हुआ है कि दूसरे जाने और उनका दिल जाने और उनका जहन जाने, तो फिर हम गुस्से में क्या करेंगे वो हमें भी अंदाज़ा नहीं होगा उसका। अब ये है कि ट्रिगर्स हमें पता होने चाहिए हमारे, अगर हमने मैनेज करना है अपने एंगर को, तो हमें ट्रिगर्स का पता होना चाहिए कि कौन सी बात मेरे गुस्से को ट्रिगर करती है। क्योंकि अगर हमने ये सोचना ही नहीं है कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता, फिर तो आगे कहानी शुरू नहीं होती। अगर हमने ये सोच लिया कि गुस्सा एक इमोशन है, वो आ सकता है, मुझे देखना है कि कौन कौन सी चीजें मुझे परेशान करती हैं, मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अपने नॉर्मल कंडीशंस में उन पे अपने आप से बात करके, जो आपके जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ बात करके, वो आपके कॉन्फिडेंट आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉलीग भी हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज हमें ट्रिगर करती है, इससे हमें गुस्सा आता है। तो फिर जब हमें पता हो, तो उस सिचुएशंस को पैदा होने से और रोकने में हमें काम करना चाहिए, ताकि वो चीज हो ना, और फिर हम अपने आप को उसमें से बचा सकें। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को गुस्सा आता है कि घर में जो है ना मेस हो, तो फॉर एग्जाम्पल चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो उस पर गुस्सा आता है। उस पर गुस्सा आने के बाद
किसी और चीज पे आप निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मैनेज कर लें कि वो आपका जो मेस है घर का, उसके लिए आप कोई ना कोई सिस्टम बना लें, कोई रूटीन बना लें, उसको स्टैब्लिश कर लें। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि अच्छा कोई जो इंसान है वो आपको इस तरह से अगर रिस्पॉन्ड बैक कर ले, अपनी टाइम पे ड्यूटी जो अगर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, अगर वो अपनी टाइम लिमिट्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहे हैं और आपको बुरा लगता है और आपको गुस्सा आ जाता है, तो फिर ये है कि उनको आप बार बार पहले से रिमाइंडर देना शुरू कर दें ताकि वो उनका काम पूरा हो जाए। उनको जो हेल्प चाहिए उनको वो प्रोवाइड कर दें। फिर भी अगर हो जाए तो फिर क्या हम करेंगे कि हम जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर भी उसको हमने अवॉइड तो करना है। हमने अपने आप को एंगर से बचाने के लिए हमने कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। ठीक है, पहली बात तो हमने अवॉइड करने की कोशिश की, हमने कर लिया, उसको प्लान करने की कोशिश की उसके लिए कि वो सिचुएशन ही ना अवॉइड हो, लेकिन फिर भी आ गई चीज, तो फिर हमने उसको टैकल करने के लिए, उसको डील करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें फौरन अपने अंदर ये मैसेज आना चाहिए कि ये चीज अब मेरे गुस्से को बढ़ा रही है, ये बढ़ाएगी, तो अब इसको जो है आपने डील करना है। बहुत सारे लोग अपने डेस्क पे, अपने वर्क टेबल पे पानी रखते हैं, तो आपको टाइम आउट चाहिए होता है। बेसिकली पानी पीना है बेसिकली टेकिंग टाइम आउट। अगर पानी नहीं भी है तो एक्सक्यूज कर लें उस बंदे से या जिसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो फिर आपने अपने आप को टाइम चाहिए। आपके जो इमोशंस एकदम रेस किए हैं, आपका बीपी एकदम से ऊपर गया है, अब उसको नीचे आने में थोड़ा टाइम चाहिए। आपने सांस लेने हैं 2-3 डीप, तो आप उसके लिए टाइम चाहिए। तो 1 मिनट कहें उस जिससे भी आपका अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी चीज पे, किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है, तो आप वहां से चले जाएं। किसी एनवायरनमेंट पे गुस्सा आ रहा है, इंसान नहीं है, तो आप वहां से अपने आप को वहां से अवे कर लें। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आपने अपनी दोनों ही किस्म की इमोशनल और फिजियोलॉजिकल अराउजल को आपने थोड़ा टाइम देना है। वो इसी तरह टाइम मिलेगा, आपने उसे कहना आई हैव चेक्ड यू, आ रहे हो, गुस्से को कहना है। जब आपको यही नहीं पता लगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो आप कहें, अगर हम यही कहते, मैंने सुना है ये वाले जुमले, लोग कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आया हुआ था, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, वो ऐसे ही मुझे करना था, गुस्सा नहीं था। अच्छा, अब वो आप उसको, अगर हम अपने गुस्से को हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर हम उसको डील तो नहीं कर सकते। हम तो वही रिपीट करेंगे, फिर हर रोज करेंगे उसको, और उस सारी जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो आपको देर तक डिस्टर्ब करता है। आपका इमोशन सारे रेस कर रहे होते हैं और आप उनसे परेशान हो रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि अगर वो आ गया है, टेक देम, उसको पहचान लें कि ये गुस्सा है, लेबल, रेड लेबल कर। हमने उसको पहचाना ही नहीं कि ये गुस्सा है, ये एंगर है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको डील नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर हमने 2-4 और छोटे छोटे तरीके हैं जो कि हम कर सकते हैं। अपने आप को जब हमने पहचान लिया कि अब ये एंगर की वजह से हम एस्केलेट हो रहे हैं, आवाज ऊपर जा रही है, तो फिर उसको नीचे ले आए, थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाएं। हाँ ठीक है, पूछ लें, उसी से रीफ्रेज करा लें अपनी बात को, तो थोड़ा अपने आप को टाइम दे लें चीज को, वो आपकी एकदम से सारा कुछ नीचे जाना शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप को अपने अंदर से कहें, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, ये गुस्सा जो है इस सिचुएशन का नतीजा नहीं है और ये सिचुएशन में बेहतर कर सकता हूँ। आई एम नॉट टू मेक इट इवन वर्स। छोटी सी बात है ना, टाइम पे किसी ने एक असाइनमेंट नहीं दी है, कोई क्या हो जाएगा अगर आधे घंटे बाद हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो रिलेशनशिप को, किसी इंसान को जो हर्ट कर लिया, उसको मेंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो असाइनमेंट तो गई फिर भाड़ में। तो इस वजह से अपने आप को हमने फिजियोलॉजिकली और इमोशनली वो हमने कंट्रोल में अपने रखना है। और जैसे मैंने शुरू में थॉट के ऊपर बात किया, तो जो थॉट है हमारी जो थॉट पैटर्न्स हैं बेसिकली, वो हमारे कुछ जनरली एरर्स होते हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी ना, मुझे लगा कि
दूसरा सेशन जो है एंगर के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी, जो इस तरह के हमारे नेगेटिव इमोशंस जो हमारी थिंकिंग पैटर्न के साथ, जिनको हम नेगेटिव जो है इमोशन, हमारी कुछ ऐसे कह लें जिनको हम डील करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर सीबीटी के थ्रू भी, उन सब थॉट एरर्स को हमें जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई बीच में मैं टाइम निकाल पाई तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दोज थॉट एरर्स जो इसके इमोशनल कंपोनेंट ऑफ द एंगर को भी सिर्फ एड्रेस नहीं करेंगे, वो स्ट्रेस को भी करेंगे, वो हमारे रिलेशनशिप की बिल्डिंग में भी वो हेल्प करेंगे, वो हमें आइडेंटिफाई करना, जिस तरह से ये हमें साइंस आइडेंटिफाई करना ना, क्या मेरा दिल एकदम से तेज भड़क हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी आवाज ऊंची हो गई है, इनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो नॉर्मल लाइफ में हाउ डू वी, हम कोई भी इंसिडेंट होने पे हमारे जहन में जो पहली थॉट आती है उसका चेक रखना और उसका पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए हम कौन से एरर्स हैं जिसके हम में जकड़ में आ जाएं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, और वो हमें काफी फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम एंगर को मैनेज भी कर सकते हैं, और इनको हम अगर ना करें तो हम फिर इसके शिकार भी हो सकते हैं। इसके बहुत नुकसानात होते हैं। हमें सबको पता है कि एक एग्रेशन की वजह से लोग एक दूसरे को मार, इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। कुछ बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भी एंगर उनका एक सिम्टम होता है, लेकिन हम उसको तो एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं ना, तो हम नॉर्मल जो हमारा पॉपुलेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं कि उनको भी तो गुस्सा और जो एंगर है वो बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी वजह से हो जाते हैं। लोगों के घर खराब हो जाते हैं, लाइक शादियां खत्म हो जाती हैं, वर्क प्लेस से लोग रेजिग्नेशन देकर चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एंगर को मैनेज ना कर सकने की। और स्टूडेंट टीचर के दरमियान भी एक एंगर का एलिमेंट कभी आ जाए तो सारी लर्निंग का सत्यानाश, कुछ भी नहीं हो पाता, रिलेशनशिप भी नहीं बिल्ड होता, तो बाकी सब चीजें एक तरफ रह जाती हैं। तो और कुछ कोई बात करना चाहेगा इस पे तो हम आई एम हियर। मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम अनीसा, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी आपने बात जो है, हर बात में आपने एक जो पॉइंट है वो आप बार बार आपने कोट किया कि नो योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ। उसके बाद आप एंगर जो है उसको, उस थॉट पैटर्न को या किसी भी चीज को या रिएक्ट करने को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो नोइंग योरसेल्फ है, इसके ऊपर जो है हम थ्रू एक्सपीरियंसेस आते हैं। कैसे आते हैं? मतलब पहला पार्ट है ये एंगर को मैनेज करने का, सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि हमें अपने अंदर से बात करनी शुरू करनी चाहिए। जितनी चीजें आपने बताई ये अंदर से कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो बेसिकली वो क्या करता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है। हमें अपने नाव में जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल जानते हुए कि अभी हम कहाँ पे हैं, क्या है, माइंडफुलनेस की जो बात हम करते हैं, तो ये बेसिकली माइंडफुलनेस है हमें कि हम इस वक्त हैं, किस कंडीशन में हैं, हम अपने विदिन हमारे क्या कंडीशन है, इर्द गिर्द क्या कंडीशन है, इन सब चीजों का हमें एहसास होना ये बहुत जरूरी है। किसी भी अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए भी जरूरी है और अपने इमोशंस के कंट्रोल के लिए और एंगर के लिए भी जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, माइंडफुलनेस और ये अपना चाहिए। जी आप बात कंप्लीट करें। माइंडफुल जी कंप्लीट करिए। बस अपना सेल्फ के अपना जायजा लेते रहना, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक, जरूरी है। तो मेडिटेशन इज मस्ट टू मैनेज एंगर। आयशा फहद है हमारे पास, हमारी मेंबर है, मैं उनको इनवाइट करूंगी। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अनीसा फॉर सच अ नाइस पर्सन। और या एक्चुअली बस हॉलीडेज की वजह से थोड़ा मैं
रेगुलर नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, समटाइम्स कर रही थी समटाइम्स नहीं, तो रूटीन थोड़ा आउट हुआ था। बाकी एंगर के हवाले से बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हर किसी के लिए ज़रूरी है। एंगर एक बस वो एक लाजमी जुज़ है नेचर के अंदर, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है। और मुझे ऐसा लगता है इतना लाइफ के बाद अपने हिस्से में आके, बीइंग अ मदर ऑफ 2 गर्ल्स, एक छोटी है एक थोड़ी ट्विंस में, तो मुझे लगता है कि ये एंगर इश्यूज टैकल करना ना पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इस एज में अगर ये एज अ स्किल ना सिखाया जाए तो आगे बहुत चीज़ें मतलब नुकसान उठाने के बाद फिर चीज़ें समझ आती हैं। तो अल्लाह ना करे हमारे बच्चे किसी बुरी एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा कहीं पे एंगर अपना सप्रेस या एक्सप्रेस बुरी तरीके से करके चीज़ें लर्न करें। तो मुझे लगता है कि ये पेरेंटिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि बच्चों को एज अ स्किल सिखाया जाए कि एंगर को किस तरह, कहाँ पे एक्सप्रेस और सप्रेस भी किस हद तक करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, और प्लस अपने लिए मेरे साथ भी थे, हैं भी अभी भी एंगर, जब गुस्सा हावी हो जाता है तो मुंह से उल्टी सीधी बात निकल जाती है, फिर वही गिल्ट वाला फेस। तो उसके लिए मैंने एक चीज अब बचपन से पढ़ा हुआ थी, हदीस भी पढ़ी हुई है, अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं कि पानी पी लो, बैठ जाओ, लेकिन उस टाइम नहीं याद आ रही होती, सच्ची बात ये है। तो मैंने एक प्रैक्टिस ये की कि मैंने नमाज में खास तौर पे ये दुआ करनी शुरू की कि अल्लाह ताला मुझसे किसी भी सिचुएशन में कोई गलत बात या गलत अमल ना करवाए। तो मैंने इस बात से नोटिस किया कि वाकई फिर फर्क आया कि पता नहीं, बस अल्लाह ताला खुद ही फिर मदद कर देता है कि बस अल्लाह ताला के कोई गलत अमल या गलत कॉल मुंह से ना निकलवा दे किसी गुस्से की हालत में भी, क्योंकि बाद में बहुत गिल्ट फील होता था और फिर वो उसकी वजह से एक मायूसी और अजीब सा दिन। तो मुझे लगता है कि दुआ मैटर्स अ लॉट अपने आप को करेक्ट करने में। हाँ, आप ठीक कह रही हैं आयशा, बिल्कुल। और देखें, दुआ हम कब करते हैं? जब हमें उस चीज के लिए दुआ करते हैं जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करती हूँ, acknowledge बिल्कुल करते हैं। और ये जो आपने बात की है ना, अगर हम घर के रेफरेंस से एंगर की बात कर लें तो ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चाइल्डहुड मेमोरीज बच्चों की बन रही होती हैं। अगर बिल्कुल घर में हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के साथ चीखना, एंगर कंट्रोल नहीं है, माँ का बच्चों के साथ नहीं है, तो वो बच्चे क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा में से गुजरते हैं, क्या पर्सनैलिटीज उनकी फॉर्म बिल्कुल और डेवलप होंगी। तो वो तो हमने पूरी एक जनरेशन को रिस्क पे डाल दिया बिल्कुल कि जिसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको पहले से एज अर्ली एज पॉसिबल हम खुद सीखें इसको मैनेज करना, इसका एक्सप्रेशन, पॉजिटिव एक्सप्रेशन। और वो तभी हमेशा जो बातें हमें पसंद नहीं है उनके ऊपर बात करना जरूरी होता है। जब वो सिचुएशन खत्म हो जाए तो उसको एड्रेस करें, उस पर बात करें कि ये बात ठीक नहीं हुई, ये काम ठीक नहीं हुआ, इसको ऐसे होना चाहिए था। चीजों को एड्रेस हम करें लिमिट तो बाउंड्रीज ना हर चीज में जरूरी है, बच्चे को पता हो कि एक लिमिट कहाँ तक है कुछ भी अपना एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट हम देखते हैं कुछ बच्चों के एंगर इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से दूसरे बच्चे भी सफर कर रहे होते हैं। तो बहुत ये जो है ना एक सेंसिटिव इशू है, बहुत ज्यादा इसमें पेरेंटिंग और इसका भी वो है कि आपने बहुत ज्यादा केयरफुली बच्चों को भी सिखाना है, टैकल करना है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है आयशा इजाज आपसे बात करना चाहती हैं। थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम जी अफशा। Thank you, Miss Anisa, for giving us such a lovely discussion session and बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पे मैं एक कमेंट करना चाह रही थी कि इटसेल्फ जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो खतरनाक नहीं होती, गलत नहीं होती, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह एंगर को भी अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो वो भी हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप में देखा जाए और स्टूडेंट को किसी टीचर की बात पे गुस्सा आ जाए और फिर वो बजाय इसके उसको गलत तरीके से एड्रेस करे, उस पर कोई गलत रिएक्शन दे, तो अगर वो इस तरह से करे कि उसको यूज करके वो अपनी स्टडीज में इतना अच्छा हो जाए कि हाँ अब मैं टीचर को शो करूंगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इस तरह से ये भी एक तरीका है कि अपने एंगर को यूटिलाइज करने का। तो आई मीन हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। वो एंगर को की जो एनर्जी जिस चीज पे उसको आप देखें, हम उसको रीनेम करना पड़ेगा मेरे ख्याल में यहाँ पर, कि वो जो एनर्जी है उसको वो रीडायरेक्ट कर रहा है। रियलाइजिंग कि टीचर जो कह रही है वो ठीक है, हो सकता है,
तो वो उसको रियलाइजेशन हुई कि उसको एफर्ट करनी है, या चैलेंज हो गया, वो चैलेंज्ड फील किया उसने, बच्चे ने। अगर ऐसा जनरली होता नहीं है। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एंगर का ये है कि अगर हमें कोई चीज का नापसंद होना, इसमें हम एक और चीज सीखते हैं, रीनेमिंग इमोशंस। बेसिकली हमें उस वक्त हम गुस्सा बहुत सारी और चीजों पे इरिटेट हो रहे हैं, कोई चीज हमारा राइट हमसे विड्रॉ कर रहा है, तो हम उस पे झगड़ा करते हैं, हालांकि उसके और तरीके होते हैं टू कीप आवर राइट बैक। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजों को हम मिक्स करके एक ही तरीके से फील करके उसका एक्सप्रेशन कर देते हैं, लाउडनेस, एंगर, गुस्से, हिटिंग, अग्रेशन में। तो ये एंगर का मतलब अगर हम ये ले लें, डिसएग्रीमेंट, अगर हम एंगर डिसएग्रीमेंट के लेवल तक एंगर रहे तो उसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट है एंगर बेसिकली विद व्हाट इज हैपनिंग, विद व्हाट इज बीइंग सेड, उससे डिसएग्रीमेंट है। यहाँ तक एंगर, अगर एंगर ना हो, डिसएग्रीमेंट ना हो, तो वर्सटिलिटी कैसे आए? फिर ये है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। एंगर को डिसएग्रीमेंट तक रहना चाहिए, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू तक रहना चाहिए। ये है मिडल थिंग ऑफ द एंगर के इमोशन की। जब ये उसका कि सिर्फ मैं ही सही हूं पे आता है, तो फिर ये उसका रॉन्ग साइड फेस ऑफ द एंगर जो हमारे सामने आता है। जो राइट साइड ऑफ द एंगर है वो है कि हाँ, ये बात आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसे है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट फॉरवर्ड करना, डिफरेंशिएशन को जहन में रखना, वो फिर साइड उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका एंगर का हो जाता है। राइट मैम, थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग इट। काफी टाइम हो गया इसलिए बस करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक यू। ये जो आपने मैम अनीसा, ये वाली जो लाइन आपने की कि मैं ही सही हूँ, ये जो मैं ही सही हूँ, इसको तो हम बड़ा सिक्योर गेट लगा के रखते हैं हम सारे। आई एम राइट वाला जो एक, या मैं ही सही हूँ, ये कहीं हमारे अनकॉन्शियसली हमारे अंदर कहीं ऐसे हमने एक गेट लगाया होता है, एक लॉक लगाया होता है कि मैं ही सही हूँ। उससे आने वाली, उससे टच करने वाली कोई भी जो चीज है, उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं, उसको हम उसके लिए हम किसी को स्पेस भी नहीं देते, और उसमें हम अपने एंगर को कहते हैं ये नेसेसरी है, ये होना चाहिए, ये हो गया है। हम राइटफुल समझते हैं दूसरों को, किसी के अपनी बात को इम्पोज करने के लिए, तो फिर वो एंगर का वो वाला साइड, वो वाली रुख जो है वो हमारे सामने आता है, और जिसको हम एंगर बेसिकली कंसिडर भी उसी में देखते हैं। तो आई गेस वी हैव हैड दिस डिस्कशन। हाँ जी, आप कोई, आपसे मैं सवाल जो है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करके फिर आप से हम इजाजत लेंगे कि व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल टू ट्रेन आवर यंग जनरेशन ऑन एंगर? क्या ऐसी एक प्रोग्राम होनी चाहिए स्कूल्स में जिसमें हम एंगर पे ट्रेन कर सकें, एंड विद एनी अदर नेम, कोई और किसी और नाम से, एंगर अदर देन एंगर मैनेजमेंट? ये जैसे मैंने शुरू से कहा कि इसका जो एक्सप्रेशन है, मेरे ख्याल में ये एक लर्नड पैटर्न होता है। हम एक फॉल्टी लर्निंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसी चीजें जनरली तो एनवायरमेंटल जो नर्चर पार्ट है उसमें आती हैं। अब अगर कोई स्कूल ऐसा है जिसमें उसकी फैकल्टी, उसके टीचर्स मिलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक प्रोग्राम तो फिर यही है कि हम अपने नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर जो है वो इस स्कूल के वॉल्स में एंटर नहीं होगा एट एनी लेवल। अगर हम ये डिसाइड करते हैं तो फिर हम कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर उनके सामने नेगेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर मॉडल होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी टू बिगिन विद, जैसे आप कह रही हैं, तो हम कोई टाइम स्पैन ऐसा कर सकते हैं, कुछ वीक्स ऐसे कर सकते हैं टू बिगिन विद,
इसके और उनको इसके नुकसानात, ठीक है, डेंजर से अवेयर करना, जैसे हम स्ट्रेंजर डेंजर से भी अवेयर करें कि इसके नुकसानात क्या हैं। पर्सनल ग्रोथ को देखिए, जो हमारी होती है ना अवेयरनेस, नॉलेज एम्पावर्स, जो अवेयरनेस है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो बच्चों को इस बात से आगाह करना कि उनकी पर्सनैलिटी के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनके करियर की कंटिन्यूएशन के लिए, उनकी फैमिली लाइफ के लिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू कंट्रोल देयर एंगर। तो उसकी एक अवेयरनेस की कोई ड्राइव हो सकती है, कोई लिटरेरी सोसाइटी के थ्रू हो सकती है, किसी विजन क्लब के थ्रू हो सकती है, जो आपके एग्जिस्टिंग इवन चल रहे हैं स्कूल में। अगर मैं आपके ही स्कूल के रेफरेंस से बात करूं तो किसी भी प्लेटफॉर्म से ये बात हो सकती है। कोई असेंबली की प्रेजेंटेशन से एक ये स्टार्ट हो सकता है एक बात, और स्टाफिंग डिस्कशन से इस पे बात हो सकती है, और एक अपना इथॉस जो एक कल्चर है स्कूल का, हम उसको इस तरफ ले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे काम हो सकता है एज वी वर्क ऑन अदर वैल्यूज, तो एंगर पे को कंट्रोल करने पे भी हो सकता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। I would like to express my heartfelt gratitude to Miss Anisa for sharing such valuable insights on anger management. Thank you very much. And I would like to invite all members, Bilal, Sabi साहब आ जाएं, फिर हम खुदाफिज कह दें जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। मैम अनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही थैंक यू आसिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक Yes, यू ma'am, फॉर it योर was प्लेटफॉर्म। wonderful. It was- आपने कहा कि आपको गुस्सा आता है, तो मुझे नहीं यकीन आता कि आपको कभी गुस्सा आता होगा। Your personality, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल सूट नहीं करता गुस्सा। तो it was wonderful, ma'am. बस Thank मैं you so अपने much. आप को यही कह के गुस्सा कम करने की कोशिश करती रहती हूँ that it doesn't suit। इसके पीछे एक जर्नी है, तो ये जो नजर आता है एक कामनेस, इसके पीछे एक जर्नी है ना? बहुत हाँ, काम है बिल्कुल। इसमें, माशाल्लाह। हाँ। नहीं, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस यूजफुल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जी, और बहुत मालूमात दी, हाईली ग्रेटिट्यूड। Thank you for all for listening me। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you अल्लाह everybody। हाफिज। Thank you।